A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is microeconomics and statistics for economics. Okay. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters basically from the microeconomics and the statistics for economics. Okay. So in today's class again we are going to study the correlation, as well as we have already discussed the some of the topic in the previous class. Okay. So what we have already discussed in this chapter correlation, that is what is the meaning of the correlation. Next topic that we have discussed, importance of the correlation, in which we have discussed the importance of correlation is it help in measurement of the relationship. Second one is it facilitate regression. Third one is it facilitate decision making, and it also help in the policy making. Next topic that we have started, that is kinds or the types of the correlation. So kinds or the types of the correlation is divided into three. First one is on the basis of the direction of change. So in which direction the correlation is changed. Second one is on the basis of the degree of change. And the third one is on the basis of the number of variables are present in the correlation. Okay. So according to the on the basis of the direction of change, it is divided into two: positive correlation and the negative correlation. Next, on the basis of the degree of change, so it is divided into two, that is linear correlation and the non-linear correlation. Third, that is on the basis of the number of variables, it is divided into three: simple correlation, partial correlation and the multiple correlation. Okay. So on the basis of direction of change and on the basis of degree of change, we have already discussed in the previous class. Okay. So in today's class we are going to start with the on the basis of the number of the variable, and after that we will study the degree of correlation, and next topic that we are going to study is the methods of the estimating the correlation. Okay. So let's get started. So next type of correlation is on the basis of number of variables. ठीक. So on the basis of number of variables की बात करते हैं तो सबसे पहला है सिंपल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन. Second one is partial correlation. Partial correlation. And the third one is multiple correlation. Okay. So simple correlation कह रहा है when only two variables are involved in the statistical study. जब हम statistical study कर रहे हैं तो यहाँ पे बस दो वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल्स ओनली. ओके. सो द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली दीज टू वेरिएबल इज स्टडीड. बस दो वेरिएबल की रिलेशन को स्टडी किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन. ठीक है. फिर नेक्स्ट है पार्शियल कोरिलेशन. पार्शियल कोरिलेशन व्हेन मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व. इसमें क्या होंगे? मोर देन टू वेरिएबल्स. मोर देन टू वेरिएबल्स. Out of all these, relationship between only two variables. ठीक है. वेरिएबल क्या होंगे? दो से ज्यादा होंगे, बट जो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? बस दो वेरिएबल में ही पढ़ेंगे. We take only two variable other consideration and all factors are assumed to be constant. इसका यहाँ पे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम लोग डिमांड पढ़ते हैं. डिमांड पढ़ते हैं, थियोरी ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो हम लोग रिलेशन किसका पढ़ते हैं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का पढ़ते हैं. और जितने भी फैक्टर्स होते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स दोज आर बीइंग कांस्टेंट. उनको हम क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं. बस दो वेरिएबल की स्टडी हम लोग यहाँ पे करते हैं. होते तो दो से ज्यादा है, बट स्टडी किसकी होती है? बस दो वेरिएबल की ही
होती है, ठीक है। फिर कह रहा है मल्टीपल कोरिलेशन, सो व्हेन मोर देन 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन द स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब जो स्टैटिस्टिकल स्टडी हम कर रहे हैं इसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं एंड द रिलेशनशिप अमंग ऑल दीज वेरिएबल आर स्टडी। और इसमें क्या होता है कि सारी वेरिएबल की साइमल्टेनियसली हम लोग स्टडी करते हैं। वी टेक ऑल गिवन वेरिएबल्स अंडर द कंसिडरेशन, हम इसमें सारे वेरिएबल्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्टडी साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल में क्या होता है आपका मोर देन 2 वेरिएबल होता है, पार्शियल में भी मोर देन 2 वेरिएबल होता है, बट इसमें हम लोग 2 वेरिएबल की स्टडी करते हैं और सारे जो जितने भी फैक्टर्स हैं और भी वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट कर लेते हैं। वही हम अब अगर हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, मोर देन 2 वेरिएबल्स होता है और सारे वेरिएबल्स की हम लोग साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग साथ में ही प्राइस को भी पढ़ेंगे, डिमांड को भी पढ़ेंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर को भी पढ़ेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका मल्टीपल कोरिलेशन। Simple correlation means only 2 variables are there and we study the relationship between the 2 variables is known as simple correlation. Partial correlation means where there are more than 2 variables and we study only the relationship between the 2 variables and other factors or the other variable remaining the constant. And here when we talk about the multiple correlation, here there are more than 2 variables are there and we study the all the factors, all the variables simultaneously. This is called the multiple correlation. Okay, so after the number of variables, next topic is degree of correlation. Degree of correlation. Okay, so it is divided into 3. So the degree of relationship between the 2 variables refers to the coefficient of correlation. Okay, so ये जो डिग्री होती है रिलेशनशिप, अगर हम 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो वो क्या बताता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इन अदर वर्ड्स, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द कोरिलेशन। दैट मीन्स कि जो कोरिलेशन है वो बताता है कि कोई भी अगर हम वेरिएबल्स ले रहे हैं उनमें कितना ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप है, उनके रिलेशनशिप को मेजर करता है कौन, कोरिलेशन। मतलब अगर हम लोग प्राइस और डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस के कितना चेंज होने पे क्वांटिटी में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं, ये रिलेशन कौन बताता है, कोरिलेशन। ओके, सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कोरिलेशन, सेकेंड वन इज एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन and the third one is limited degree of correlation. So first one is perfect correlation. Perfect correlation. Second one is absence of correlation. And the third one is limited degree of correlation. Okay, so degree of correlation is divided into 3: perfect correlation, absence of correlation, and the third one is limited degree of correlation. Okay, so first of all we will deal with the perfect correlation. Okay, so perfect correlation is further divided into 2, that is perfect positive correlation and perfect negative correlation. Perfect positive correlation and the perfect negative correlation. Negative correlation. Okay, so when 2 variable changes increase or decrease in the same proportion, अगर जब कोई भी 2 वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, बट इट विल बी इन द सेम प्रपोर्शन।
अगर x इंक्रीज कर रहा है और y वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, तो जब भी ये दोनों इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो जब प्रोपोर्शन की हम बात करेंगे वो क्या होगा, हमेशा ही सेम होगा और हमेशा ही इक्वल होगा। उसको हम लोग बोलते हैं सो परफेक्ट कोरिलेशन में भी पॉजिटिव और भी निगेटिव। तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हो सकता है। सो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन। सो व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल इज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि अगर ये जो दो वेरिएबल हैं वो चेंज हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दो वेरिएबल अगर हम लोग लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल x और y वेरिएबल, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन दिस केस इज 1। इस केस में परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होगा, पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में क्या होगा, जब कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, वो +1 हो, ठीक है, मतलब 1 होगी, ठीक है। तो इसका व्हेन डेटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, अगर हम लोग जो डेटा है ये x और y के वेरिएबल्स का, उनको क्या करेंगे, डायग्राम पे और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। सो वी सी दैट ऑल द पॉइंट वुड बी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। सारे जो ये पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज जो ये प्रपोर्शन, जितना ही प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है वो प्रपोर्शन हमेशा ही क्या होगा, वो सेम होगा। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे x वेरिएबल है 1 2 3 4 5, राइट। y वेरिएबल लेते हैं हम लोग 10 5 10 15 20 और 25। अब देखिए दोनों वेरिएबल्स का जो ये प्रपोर्शन चेंज हो रहा है, प्रपोर्शनेट चेंज हो रहा है, वो हमेशा ही सेम होगा। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1 का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। अगर हम y वेरिएबल का बात करते हैं तो 10 और 5 डिफरेंस 5 5 5 एंड 5। ये क्या हो रहा है कि x और y वेरिएबल वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दे विल बी ऑलवेज इन द सेम प्रपोर्शन, ठीक है, इन द केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +1, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट निगेटिव। परफेक्ट निगेटिव, so when proportional change in two variable is in the opposite direction, अगर क्या होता है कि जो चेंज हो रहा है वेरिएबल वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि पहले पॉजिटिव था तो वो क्या असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा था, बट अब यहाँ पे क्या है कि ये जो होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 20 30 40 50 है एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल क्या होगा 10 8 6 4 एंड 2, मतलब वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे हैं दे ऑल आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। इट इज कॉल्ड दी परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। और इसकी वैल्यू क्या होती है निगेटिव कोरिलेशन की, -1 +1 -1, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यही था 10 20 30 40, जैसे एक वेरिएबल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। फिर सेकेंड आता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर हम लोग दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं x और y, ठीक है, x और y वेरिएबल का देखते हैं कि दोनों में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या तो उनमें x और y वेरिएबल है या तो कोई रिलेशन नहीं है, या तो एक x अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो y वेरिएबल पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे कोई हम लोग ले लेते हैं जैसे किसी भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड एज ऑफ द पीपल। अगर हम लोग प्राइस ले रहे हैं कोई कमोडिटी की और एज ले रहे हैं, तो वेरिएबल तो हमने देखा दो है, बट एक का अब प्राइस का किसी की एज पे क्या मैटर करता है, कोई नहीं है, तो कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि वेरिएबल्स तो हैं या तो उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, या तो अगर है तो एक्स वेरिएबल का इम्पैक्ट वाई पे कुछ भी नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन। सो जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल 100, 70, 250, 360, 90 एंड सो ऑन। और इसमें भी कोई ले लीजिए आप 20, 45, 95, 36 और 10। अब देखिए ये जो दोनों वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, इसमें देखिएगा कि कोई भी रिलेशन नहीं है कि अगर एक इंक्रीज भी कोई नहीं कर रहा है, जैसे अब 100 है फिर ये डिक्रीज कर गया, फिर ये इंक्रीज कर गया एंड देन डिक्रीज कर गया। अब इसके साथ हम इसका रिलेशन देख रहे हैं कि ना इसमें कोई कॉन्स्टेंटली ये कुछ चेंज हो रहा है, ना ही वाई वेरिएबल, क्योंकि वाई वेरिएबल 20 से 45 हुआ, 45 से 90 हुआ एंड देन डिक्रीज अप टू 36 एंड देन 10। तो इन दोनों में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन। कि कोरिलेशन का क्या है इसमें, एब्सेंट, कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब कि अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, -1 से +1 के बीच में वैरी करती है। -1 to +1 के बीच में वैरी करती है, जिसमें ये क्या शो करता है कि अगर कोई दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं तो उनमें कितना ज़्यादा, कितना इंटेंस रिलेशनशिप है, या वो रिलेशनशिप हाई डिग्री का है या मॉडरेट है और लो डिग्री का। ठीक है, तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, moderate degree of correlation, moderate degree of correlation, and the last one is low degree of correlation. Okay, ओके। सो देखिए लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कह रहा है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ चेंज इन वन वेरिएबल नीड नॉट टू बी एग्जैक्टली कंपेनिएड बाय ए करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर वेरिएबल। ठीक है, अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि करस्पॉन्डिंग अदर वेरिएबल में भी क्या हो, चेंजेस आए। सो इट इज अ सिचुएशन बिटवीन द परफेक्ट कोरिलेशन एंड द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, बिटवीन 0 to +1 और बिटवीन 0 to -1। मतलब ये जो होता है, ये रिलेशन किसके बारे में बता रहा है कि परफेक्ट कोरिलेशन भी हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन भी हो सकता है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब 0। ठीक है, इसकी भी ये बात करता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा था डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 0 to +-1 इज कॉल्ड द लिमिटेड कोरिलेशन। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये क्या करती है, 0 to +- के बीच में वैरी करती है, जिसमें क्या है, जिसको लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, सो हाई, फर्स्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो इट इफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन 0.7 एंड 1, अगर इसकी वैल्यू क्या है 0.75 से 1 के बीच में वेरी कर रही है, दैट मीन्स ये क्या है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो इट विल बी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन को भी 2 में डिवाइड करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, दैट मीन्स वैल्यू क्या होगी, +0.75 से +1 के बीच में वैरी करेगी। वही हम बात करते हैं निगेटिव कोरिलेशन की, तो ये जो वैल्यू है -0.75 से
-1 के बीच में वैरी करेगी। ठीक है, ये जो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ठीक है, -0.7 से -1 के बीच में वेरी करती है। जब हम लोग हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 0.75 से 1 के बीच में वेरी करती है। वही हम बात करते हैं जब मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की, तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में वेरी करती है, 0.25 टू 0.75 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, अब इसको भी क्या करते हैं, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड मॉडरेट डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन में भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, -0.25 से -0.75 के बीच में वैरी करेगी। ठीक है, जब हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं तो -0.25 से -0.75 के बीच में वैरी करेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं निगेटिव की तो वैल्यू क्या होगी आपकी, 0.25 मतलब +0.25 से +0.75 के बीच में वैल्यू वैरी करेगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लास्ट जो है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये वैल्यू ये किसके बीच में वैरी करती है, 0.25 से, दिस वैल्यू वेरीज फ्रॉम दी 0.0 टू 0.25, 0 से 0.25 के बीच में वैल्यू वैरी करती है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड लो डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, दो में डिवाइड किया, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर वैल्यू क्या होती है, 0 से +0.25 के बीच में होती है, सॉरी आई हैव रिटन wrong here, this will be positive ना, this will be negative, okay sorry, so it will be positive, तो positive होगा तो +0.5 से 0.25 से 0.75 के बीच में वैरी करेगी। अगर हम निगेटिव बात करते हैं तो -0.25 से -0.75 तक वैल्यू वेरी करे। अगर हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो वैल्यू विल वेरी बिटवीन 0 टू 0.25, 0 से 0.25 के बीच में वैल्यू वेरी करेगी। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो वैल्यू 0 टू -0.25 के बीच में वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, 0 से 0.25 के बीच में वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हमने क्या क्या देखा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, 3 पार्ट है इसका। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कोरिलेशन, सेकेंड वन इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, थर्ड वन इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल्स ले रहे हैं उनमें क्या है, बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है बिटवीन दी वेरिएबल्स। इसको फिर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं। इसमें क्या है, सेम प्रपोर्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन को जब देखते हैं तो हम ये कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें या तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, या तो है तो एक का क्या है, एक का चेंज दूसरे पे चेंजेस में कोई भी फर्क नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, थर्ड वन इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हम लोग हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में देखते हैं तो जो वैल्यू होती है कोरिलेशन की, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, द वैल्यू विल बी वेरी बिटवीन दी 0.25 टू 1। वैल्यू क्या करेगी, 0.25 से 1 के बीच में वेरी करेगी। मॉडरेट डिग्री में, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू क्या होगी, 0.25 से 0.75 के बीच में वेरी करेगी। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू क्या होगी, 0 टू 0.25 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, अब ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, क्या, पॉजिटिव, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। अगर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है,
सो वैल्यू होगी 0.2 प्लस 0.752 प्लस 1. अगर हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो -0.752 -1. ओके. नेक्स्ट है मॉडरेट डिग्री की वैल्यू 0.25 से 0.75. इसके भी फर्दर विल डिवाइडेड इनटू टू. दैट इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, moderate degree of negative correlation. So when we talk about the positive moderate degree of positive correlation, the value will vary between to plus 0.252 plus 0.75. वही नेगेटिव में क्या होगा -0.252 -0.75 तक वैल्यू वेरी करेगी. फिर आता है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू इसके भी टू टाइप्स हैं. सो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, low degree of negative correlation. So low degree of positive correlation में value vary करेगी 0 to plus 0.25 से. नेगेटिव में value vary करेगी 0 to -0.25. तो ये आपका क्या हो गया degree of correlation. Okay. So next topic जो है वो है आपका methods of the estimating the correlation. कि what are the different methods of the estimating the कोरिलेशन. ठीक है, इसको देखते हैं. तो जब हम मेथड्स देखते हैं एस्टिमेट करने के कोरिलेशन को, तो इट विल डिवाइडेड इनटू 3. इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. क्या क्या होता है? सबसे पहला स्कैटर डायग्राम मेथड कि हम लोग जो भी डिफरेंट आपके कोरिलेशंस है पॉजिटिव, वेदर द रिलेशन इज पॉजिटिव और द नेगेटिव, सो वी विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. ग्राफिकली जो प्रेजेंट करना होता है वो होता है स्कैटर डायग्राम मेथड. नेक्स्ट होता है आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम लोग बहुत 4 मेथड हैं. डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड we will calculate the value of the correlation. Third one is rank correlation, which is given by the Spearsman rank correlation. Okay, so as you already know, due to COVID, your syllabus has been reduced up to 30%. So you no need to study the Spearsman rank correlation. Okay, you have to study only 2, that is scatter diagram and the Karl Pearson's coefficient of correlation. Okay. So we will explain it thoroughly. The topic is methods of the estimating correlation. Methods of estimating correlation. First one is scatter diagram method. Scatter diagram method. Second one is Karl Pearson's coefficient of correlation, and the third one is Spearsman rank correlation. Okay, so method of the estimating correlation में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? स्कैटर डायग्राम मेथड पढ़ना है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन. ओके, तो इसमें हमने देखा कि स्कैटर डायग्राम में क्या करना है कि ये जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं कोरिलेशन की, उसको क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे. मतलब विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर पे वैल्यूज़ को प्लॉट करके, अगर वो एक्स और वाई वेरिएबल को प्लॉट करके अगर वो लाइन क्या है स्ट्रेट बनती है, तो स्ट्रेट में भी फ्रॉम अप टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो वो क्या है परफेक्ट कोरिलेशन. वहीं अगर जो लाइन है वो स्ट्रेट तो बन रही है बट
डाउनवर्ड जा रही है, तब क्या होगा, डाउनवर्ड हो रही है लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स यहाँ पे कोरिलेशन तो परफेक्ट है बट निगेटिव कोरिलेशन। वही हम बात करते हैं डायग्राम की, जब हमारा जो डायग्राम हमने वैल्यूज एक्स और वाई वेरिएबल को प्लॉट किया और ये एकदम ही स्कैटर्ड है, जहाँ से हमको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्स और वाई वेरिएबल, हम इवन कांट एबल टू ड्रॉ एनी सिंगल लाइन, तो ये क्या है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। मतलब कोरिलेशन में कोई भी हम बता ही नहीं सकते कि दो वेरिएबल जो हमने लिया है वो उसमें क्या रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में मैंने बताया इसमें 4 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें क्या है, इसके डिफरेंट फार्मूला है, तो विद द हेल्प ऑफ द formulas we are going to solve some numerical questions, and also we are doing numerical question in the online as well as offline class also. Okay, and you no need to study the Spearman rank correlation because it is deleted from your syllabus.